So my screen is visible. Yes, sir. So you completed the, I think your doubt in exercise number 3, this one. Yes, sir. Okay. So before going to this drawing, I just a little discussion with you, H. So see here, I just in my screen, you just this option is completed or not? Not. This linear pattern is completed or not? Yes, sir. Completed. Not Yes, this sir. one. You have This already. this one is different. This one is in sketch section, but this one is in features. So the last video that I saw was your Yes. video. So actually, I think that Okay. was the sketch option Yes, only. yes, yes. Yeah, because I already discussed with Amitji, he told me this much of options are completed. Now you just carry on to the next. So, okay, okay. First, I just show you the this model. Okay, just see here how this how to do that. How to first how to approach it. Means how what to do first thing. So we need to do the profile first. Like this base profile. Okay, this is the base profile we need to do. Complete close profile we need to do and put some height. So what is the 120 is distance 30 and this one is 60. Okay. So first we just take a plane, a top plane, sketch, make a circle, two circle. This one is Sir, 30. Yes. I have a question, sir. Actually, you are making the drawing. It is every time showing MMGS, but whenever we start the drawing, it is automatically into IPS. So how to change the settings, sir? Okay. So whenever you open the interface or display, you just see here IPS. Okay. Yes or not? Yes, sir. Yes, yes. First thing you have to before after installation, whenever you start to enter a part or something, you just see a window about that unit. Whenever you install it, after installing, it will be automatically shown in your display. You have to select MMJS. Okay. If you are not selected at that time, how to change in our screen? So you just select here MMJS. Okay. You just first thing, I just close this new part. It comes like IPS. Okay. So how to change this? Go to here, select this one. Say watch. Just a minute. Here we can change. See, in go to options. Okay. Here we just select that document properties. Here you come, need whatever unit you need, you just select here and click on OK. Okay, I need IPS. Click IPS. Click on OK. See. Okay. Now close the software.
Again, it will be open.
हेलो। 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 यस सर। हाँ, वो यूनिट का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एट लास्ट मैं बताऊंगा, ये क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए ओके सर। वरीड मत होना, मैं अभी दिखा रहा हूँ, क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे। ओके। So I just saw that model, okay. So see how to do, when from where we start model. So go to the file, new. One 20, 60. Sir, we can also do that part by slot also. स्लॉट में हो सकता है, बट Actually, sir, we can make the drawing, but we need the correct approach. अप्रोच कर नहीं पा रहे हो हाँ ड्राइंग सर, का। मतलब हमको पता है टॉप व्यू से अप्रोच करना है ड्राइंग को, लेकिन सर जी। किसको किसको पहले बनाना है, फिर किसको एक्सट्रूड करना है ऐसा पहले वही। ऐसा नहीं कि इसको पहले बनना है, इसको पहले बनना है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट से by creating which part we can minimize the option, whatever option we are using, we just minimize it, क्योंकि जो भी ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे, एक्सट्रूड हो गया या कट हो गया, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हमारा फीचर मैनेजर ट्री में आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको भी मिनिमाइज करना है और ड्राइंग को भी कंप्लीट करना है।
नहीं तो हम बार बार एक सर्कल करके एक्सट्रूड करेंगे, फिर से और एक स्केच करके उसको कट करेंगे, तो बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो तुम जो भी व्यू में चाहे बना लो, फर्स्ट यू हैव टू सी बाय व्हिच ऑप्शन, बाय व्हिच by using which profile we can minimize the options and we can complete the profile, required profile। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बना रहा हूँ कि तुम लोग भी ऐसा बनाओगे, ऐसा नहीं है कुछ। तुम लोग चाहोगे तो ये प्रोफाइल बना सकते हो, उसके बाद ये बना सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट मुझे यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है, मेरा जो प्रोफाइल है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अदरवाइज तुम जैसे भी तुम्हारा मर्जी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये टॉप लेन में बना के मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ऐसा ही करना है। तुम लोग ये बना के इसको कर सकते हो, तो ये बना के उसको भी कर सकते हो, उसके बाद ये बना सकते हो। दैट इज योर चॉइस। हाउ हाउ यू सी द ड्राइंग, हाउ टू रीड द थिंग्स, दैट इज योर माइंडसेट।
Sir, it was extrude cut. यस यस, ये एक्सट्रूड कट है। देन ये यहाँ पे कितना है, 3। Hello, sir. यस यस। Sir, you already made that semicircle there. What if you have used arc there, not a circle? Will be there any changes? ओनली, हाँ तुम सर्कल कर सकते हो तो बेटर है। मीन्स जैसे कि मैं पहले ट्रिम कर दिया, तुम ट्रिम ना करके भी रख सकते हो। नहीं, बट मतलब मैं ये सिलेक्शन, पूछ रहा हूँ सर कि ये जो सर्कल का आप यहाँ पे तो आर्क भी बना सकते थे ना सर, तो कनेक्ट हो जाता। यहाँ पे आप नहीं सर्कल नहीं बनाया तो नीचे। कनेक्ट, लिसन लिसन, अगर मैं इसको डिलीट करके आर्क बनाता हूँ, सॉरी, ये आर्क बनने से क्या होगा, ये थोड़ी ना कंप्लीट होगा ये प्रोफाइल। यहाँ पे तुम्हें स्केच चाहिए ना, ये बस इतना ही स्केच है। बट तुम्हें टोटल को क्लोज करना है, विदाउट क्लोज तुम उसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते हो। ओके सर। ओके ठीक है। सर, समझ गए सर। तो ये कितना एक्सट्रूड हुआ है, टोटल 36 है। 36 टोटल है हमारा। तो हम 36 माइनस, डायरेक्शन 2 में, ठीक है। समझ में आया तो ये डायरेक्शन 1 में हमारा 24 प्लस डायरेक्शन 2 में 12, टोटल मिला के 36 हो रहा है। तो स्केच में देखो 36 है तो उसके बाद गो टू फ्रंट प्लेन स्केच। यहाँ पे क्या स्केच है, दिस वन, रेडियस 12 का एक, इसका डिस्टेंस तो कुछ दिया नहीं, अज्यूम करके लेना है बस। गो टू टॉप प्लेन यार,
सॉरी, कॉट एक्सट्रूड हो गया है, उसको एक्सट्रूड करना है। फोर्टी टू फ्रॉम मिड प्लेन। ओके, go to top plane, sketch, make a rectangle। इसका भी कुछ डायमेंशन नहीं है। तो हम 6 कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, जो जो डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे इसका विड्थ मिसिंग है, इसका लेंथ मिसिंग है, ये सब एज्यूम करके देना है। ओके। ओके, ओके, आज देखते हैं प्लेन, एक्सिस और पॉइंट। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केच बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारा मॉडल्स आता है यहाँ पे, सी ये सब मॉडल्स आता है। तो इसके लिए हमें प्लेन क्रिएशन कहाँ पे करना है, कहाँ पे स्केच करना है। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में रिवॉल्व हुआ था, तो रिवॉल्व के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक एक्सिस चाहिए। ओके। तो वो सब कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब रेफरेंस है। वो बाय यूजिंग द रेफरेंस वी कैन मेक द पार्ट, वी कैन मेक द स्केच। ओके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन क्रिएशन, एक्सिस क्रिएशन। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान से देखना है। ओके। सो प्लेन मीन्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास 3 प्लेन्स ऑलरेडी है, एक्टिवेट है। जैसे जो कि हमारा बेसिक है, फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन और टॉप प्लेन। ठीक है। बट apart from this plane we need more planes for the different sketches, for the different profiles on the different planes। so कैसे create करेंगे, by using a by using a face or by using a particular plane। so see here, इसको मैं hide कर देता हूँ। okay, तो I have a plane here like front plane। तो मुझे अभी यहाँ पे एक sketch बनाना है। एग्जिट। तो ये जो मेरा स्केच है वो फ्रंट प्लेन में है। ठीक है। गो टू रेफरेंस, select plane। see, whenever you select the option, it's showing first reference, second reference, third reference। ओके। तो ये पूछ रहा है कि हमारा कौन सा रेफरेंस को यूज करके हम लोग अपना प्लेन को डिफाइन करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी पार्ट हो, 3D मॉडल पार्ट जिसमें प्लानर फेस होना चाहिए। ठीक है। या तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लेन है, जैसे कि फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है। तो फॉर एग्जांपल मुझे फ्रंट प्लेन से और एक प्लेन को डिफाइन करना है, तो सिलेक्ट है फ्रंट प्लेन। यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सिलेक्ट द प्लेन हियर। सी, ओके, देन वी कैन डिफाइन द डिस्टेंस।
कितना गैप में हमें एक प्लेन क्रिएट करना है, 30, 40, 50 या 10 जो भी है, वी कैन डिफाइन। अगर तुम्हें इसको अपोजिट में लेना है तो यू जस्ट क्लिक हियर फ्लिप ऑफसेट। जैसे कि हमारा स्केच में ऑफसेट ऑप्शन यूज हो रहा था, वो क्या हो रहा था, पैरेलली एक स्केच को ऑफसेट कर रहा था, कुछ डिस्टेंस में उसको मेंटेन कर रहा था। तो वो क्या था, एक सिंगल प्लेन में हम उसको डिफाइन कर रहे थे, बट ये है हमारा डिफरेंट। ओके, click here. Okay, see, this is a another plane. Select sketch, make another sketch here. Exit. See, ये एक डिफरेंट स्केच है, इसको हम हाइड कर देते हैं, ये प्लेन को भी हाइड कर देते हैं। See, this is the different and this one is also different. अभी मेरे पास एक पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है। See, I just have a part here. It stood. Okay, go to the plane. Select this place. See, click here. Okay, select the face here. Click. Again, I just make a sketch. Exit. Extrude. See, I can go to reference plane. Plane. Select. तो तुम्हें जितना चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक आ रहा है, मुझे और भी 3, 4, 5, as per my requirement, according to the कितना डिस्टेंस में, कितना गैप में तुम्हें चाहिए, just define the gap and define the number of plane and click here OK. Sir, can I use it for bottom plane? But yes, Bottom plane? bottom plane means from the bottom side. हाँ. Yes, yes, you can. If you have a planar face, then you can select any of the sides, bottom, top, sides, whatever you need. See, plane I need from the bottom side. See, I just define the this gap here. See, I need from the side. See, प्लानर फेस होगा, तो अगर तुम्हारे पास प्लानर फेस नहीं है, कुछ कर्व टाइप का फेस होगा, देन वी कैन नॉट डिफाइन द प्लेन। ओके, इसका जो और मीन्स जो भी फंक्शन है इसका, ये प्लानर फेस को ही रीड करता है। ठीक है, और भी है उसका ऑप्शंस, मैं जो अभी दिखा रहा हूँ उसको प्लानर फेस को ही बेस करके वो डिफाइन करेगा। ठीक है, विथ सम डिस्टेंस। ओके, और एक है हमारे यहाँ पे, देखो वर्टेक्स पॉइंट। सी, मैं एक सिंगल पॉइंट में यहाँ पे टच कर रहा हूँ, देखो एक पॉइंट में वो क्रिएट हो रहा है, और एक पॉइंट में मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सी, एक एंगल में क्रिएट हो रहा है। सी, मेरा जो पार्ट है एक एंगल में हो गया। then click here OK, then go to the sketch, make some sketch here. ओके, जो रिक्वायरमेंट है, आज फॉर रिक्वायरमेंट यू जस्ट हैव टू डिफाइन योर प्लेन। एक पर्टिकुलर एंगल में भी हम उसको सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सी, यहाँ पे बॉक्स, ओके, गो टू द प्लेन हियर। सी, मैं एक एड्स को, पर्टिकुलर एड्स को सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेन, select a face,
विथ एड्स। यहाँ पे देखो हमारा एंगल एक्टिवेट होगा। सी अभी हमारा ये एंगल कितना 90 डिग्री में है, मुझे इसको पुट करना है 60। सी ओके, ये एड्स को बेस करके उसका वेरिएशन होगा। उसको तुम इंक्रीज डिक्रीज जो करना चाहते हो कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एंगल अगर रिक्वायरमेंट है ड्राइंग में, ओके वी कैन यूज दिस वन आल्सो। ठीक है, देन क्लिक हियर। ओके सी यहाँ पे कुछ स्केच बना सकते हो जो बनना चाहते हो। एग्जिट, एक्सट्रूड। क्लियर, इसको हम हाइड कर देते हैं। सो ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर प्लेन। सर एंगल देने के लिए फर्स्ट सिलेक्ट द प्लेन देन एंगल। First select the face, again I just show you, first select the face, then define the edge, particular edge को define करना है जहाँ से तुम्हें उसको reference लेना है, चाहे this one or this one। see I just select this or this, तो ये इसके बेस में आ गया। अभी जस्ट अभी ये क्या है डीएक्टिव मोड में है, जस्ट क्लिक हियर द ऑप्शन, इसको क्लिक करना है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। देन तुम्हें कितना एंगल यहाँ पे पुट करना है जस्ट पुट हियर। ओके सर उस रेफरेंस प्लेन में ड्राइंग करने के लिए वो प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ये ओके कर दिया। अभी मेरा प्लेन यहाँ पे है, सिलेक्ट द प्लेन, बैक स्केच। अगर तुम्हें वहाँ पे ड्राइंग चाहिए कुछ। ओके सर। सर वो फर्स्ट रेफरेंस सेकंड रेफरेंस मींस मल्टीपल प्लेन्स। वो दिखा रहा हूँ अभी मैं। सी आई हैव प्लेन हियर, यहाँ पे देखो वर्टेक्स पॉइंट दिखा रहा है। सी दिस वन, जब मैं यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन करूंगा तो ऑटोमेटिकली द टैब्स आर स्विच्ड। ओके सी दिस इज माय फर्स्ट रेफरेंस, दिस इज माय सेकंड रेफरेंस, दिस इज माय थर्ड रेफरेंस। देखो वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। ओके सर। ओके ये रेफरेंसेस है। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट के मिडिल में एक प्लेन क्रिएट करना है तो सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। सी इन मिडिल एक प्लेन आ गया। जैसे कि हम एक बॉक्स को एक्सट्रूड करते हैं, हमको मिरर करने के लिए पर्टिकुलर प्लेन चाहिए तुम्हें, यू जस्ट हैव टू मिरर इट। तो तुम्हें बोथ दो प्लानर फेस के मिडिल में अगर तुम्हें कुछ प्लेन क्रिएशन करना है तो यू जस्ट सिलेक्ट बोथ द फेसेस, इट विल ऑटोमेटिकली highlighted in the middle of that model। Okay, by using this plane we can mirror something, some features we can mirror। okay see मेरे पास एक यहाँ पे कट फीचर है यहाँ पे एक, इसको मुझे मिरर करना है। मिरर करने के लिए मुझे एक मिड प्लेन चाहिए ना, तो गो टू मिरर हियर। सी select the plane, then select the feature, this one my feature। ओके अगर मेरे पास ये प्लेन नहीं होगा तो कैसे करेंगे। क्लियर, मिरर के लिए यूज होता है, ये स्वेप्ट लॉफ्ट इसके लिए भी प्लेन यूज होगा, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी बेसिक में तुम्हें मिरर करने के लिए प्लेन रिक्वायरमेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट स्केचेस का प्रोफाइल को बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू मेक द प्लेन्स। और इतना याद रखना है दिस इज ओनली मीन्स प्लानर फेस के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। अगर मेरे पास एक कर्वेचर टाइप का फेस है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ प्लेन। सर वो मिडिल में वो रेफरेंस प्लेन। हाँ कैसे हुआ, हाँ सर। सी यू जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट फेस, मीन्स बहुत फेस को तुम्हें सिलेक्शन करना है, इट विल ऑटोमेटिकली हाईलाइट। कुछ प्रेस नहीं करना है, ऑनलाइन सिलेक्शन करना है। ठीक है, हाँ यस।
10। देन आते हैं एक्सिस। एक्सिस हमें क्यों चाहिए? हमें कुछ रिवॉल्व करना है या कुछ पर्टिकुलरली एक सर्कुलर फीचर्स के लिए या कट करना है सर्कुलरली, तो वी जस्ट हैव टू मेक द एक्सिस। आई जस्ट मेक ए सर्कुलर फीचर हियर। सर एक यस। क्वेश्चन, वो जो मॉडल बना रहे हैं सर मूवमेंट के लिए, मगर अगर सर फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन और सर वो जो मिडिल मतलब लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बीच में जो स्क्रॉल है हाँ ना, हाँ हाँ करना है ना। हाँ हाँ, स्क्रॉल क्या हुआ? हाँ, उस सर वो घुमाने के लिए सर, लाइक वो फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन मॉडल बनाने के लिए वो सर फेस जो है ना, वो रिवॉल्व हाँ, करने के लिए क्विक सर, देन सर वो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बीच में जो स्क्रॉल ये बार है उसको क्लिक करना पड़ेगा ना। इसके लिए अभी जो दिखा रहा हूँ, हाँ 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 इसके लिए तुम्हें राइट क्लिक को प्रेस करके थोड़ा सा ड्रैग करना है राइट साइड में। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होगा। राइट क्लिक, प्रेस राइट क्लिक तो सर एंड ड्रैग इट। ड्राइंग करने का टाइम वो जो मॉडल पे सर, सपोज सर बॉटम फेस में कुछ ड्राइंग करना है तो ओके। सर टॉप फेस में कुछ करना है, तो वो जो फेस सा चेंज हुआ ना वो नहीं सर नहीं आप नहीं सर नहीं, क्विक। तुम्हें अगर सी सी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे सर मुझे हाँ सर, ये हाँ ये फेस में कुछ ड्राइंग करना है, ठीक है? बाय हाँ यूजिंग देन दिस सर ऑप्शन, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। हाँ जैसे कि ये ऑप्शन इसमें तुम्हें नहीं होगा क्योंकि यू आर नॉट सिलेक्ट फेस। यू जस्ट सी द व्यू, एक पर्टिकुलर मॉडल का तुम व्यू दिख रहे हो। टॉप व्यू कैसा होगा, राइट साइड व्यू कैसा होगा, ठीक है? तुम वहाँ पे कोई स्केच, कोई प्लेन सिलेक्शन नहीं किया हो एक स्केच के लिए। तो हमें नॉर्मल एक स्केच बनाने के लिए पर्टिकुलर प्लेन चाहिए, फेस चाहिए, ठीक है? तब जाके ये एक्टिवेट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ रहा है, स्केच किया। सी, अगर मैं इसको ऐसा नहीं करके नॉर्मली मैं इसमें जाता हूँ, तो अभी मेरे पास कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ ओरिजिन पॉइंट नहीं है बनाने के लिए। ठीक, मीन्स मेरा स्केच एक्टिवेट नहीं हुआ अब तक। ठीक है, तो यू हैव टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर फेस एंड डिफाइन स्केच। इस स्केच ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तब जाके तुम्हें जो भी ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है, ड्राइंग करना है या मॉडिफाई करना है, यू कैन यूज। क्लियर? सर एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ इन द आइसोमेट्रिक फेज, जी। माने आइसोमेट्रिक फेज है सर, बॉटम फेज जाने के लिए क्विक सर, देन सर रिवॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ इस टाइम सर हम चाहते हैं जो बॉटम फेस के कुछ एडिट करेगा। बटन फेस में हाँ एडिट करने के लिए। ये तो सर सिमेट्रिक ड्राइंग है, ये फिर कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ है। तो सर हाँ, ये अनसिमेट्रिक है सर, वो बॉटम फेस के जाने के लिए क्या करेगा। जस्ट सेकंड। मेरे पास एक भी एक स्केच है। सिमेट्रिक ड्राइंग के लिए सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आइसोमेट्रिक होता है ना उसके लिए कुछ एडिटिंग है। आइसोमेट्रिक में क्या, वो तो व्यू होता है ना, वो पर्टिकुलर वो। नो सर, अनसिमेट्रिक नो सर, आइसोमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक। उसको भी कर सकते हैं तुम, अगर तुम्हें चेंजेस करना है। रिवॉल्व में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तुम्हें चेंज करना है स्केच में। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर ये स्केच बनाया हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सी। ठीक है, मेरे पास ये स्केच है। मुझे ये डाउन को हाँ कुछ चेंजेस करना है। ये जो मेरा जैसे कि ये स्केच मेरा स्ट्रेट है, मुझे इसको एंगल में करना है। तो जस्ट गो टू स्केच
एडिट स्केच में तुम्हें यहाँ पे इसको एडिट करना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एंगल कर दिया एंड इसको ट्रिम कर दिया, एग्जिट। सी स्केच स्केच में चेंजेस करना है, बट रिबल में ये ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। अभी देखते हैं हमारा एक्सिस का ऑप्शंस। तो एक्सिस के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ कंडीशन चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन क्रिएट एन एक्सिस। सी यहाँ पे हमारा क्या क्या ऑप्शन दिखा रहे हैं, वन लाइन और एड्ज और एक्सिस। अगर हमारे पास एक लाइन है वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एक्सिस। अगर हमारे पास कुछ एड्जेस है, पर्टिकुलर एड्ज, जैसे कि एक ब्लॉक में एड्जेस होता है, एड्ज हैं, देन वी कैन आल्सो कन्वर्ट। अगर इफ यू हैव टू प्लेन्स वी कैन मेक ए एक्सिस। if you have 2 points or two vertices we can also make a plane. If you have a cylindrical object, cylindrical face, we can also make a axis. Okay, so देखते हैं कैसे होता है। first we have to make a sketch or make a part। अभी हमारे पास एड्ज है। सी एड्ज में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे go to the axis, select here, select the first option, select the edge, particular edge। सी ओके, अभी इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। सी यहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हुआ। हाँ सर। पर्टिकुलर एड्स, सपोज मेरे यहाँ पे एक स्केच है, एक लाइन में बना रहा हूँ। is a sketch. By using this sketch we can also make a axis। see okay, then और क्या है यहाँ पे, टू प्लेन। इफ यू हैव टू प्लेन, सी इसको सिलेक्शन करना। हमारे पास अभी टू प्लेन है, जैसे कि मेरे पास एक राइट प्लेन है और एक फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन और राइट प्लेन सिलेक्ट करो, देखो वो जहाँ पे कोइंसिडेंट होंगे वहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट होगा। क्लिक करो ओके। सी अगेन दिखा रहा हूँ, फ्रंट प्लेन, सी फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन। जहाँ पे मर्ज होता है उसी एरिया में एक एक्सिस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, अगर तुम्हारे पास प्लेन है। मतलब इंटरसेक्टिंग जो एक्सिस होता है। यस यस यस, इंटरसेक्टेड। देन क्या है, टू पॉइंट। इफ यू हैव टू पॉइंट और वर्टिक्स, वर्टिक्स मींस एक एज पॉइंट को, दिस वन एंड दिस वन। सी ओके, यहाँ पे एक एक्सिस क्रिएट हो रहा है। अगर हमारे पास टू पॉइंट है तो वो भी हो सकता है। देन सिलिंड्रिकल, या सिलिंड्रिकल फेस में होगा। और यहाँ पे लास्ट में आता है पॉइंट ऑन फेसेस। सी इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब अभी हमारे फेस में कोई पॉइंट नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट पॉइंट। गुड पॉइंट, नहीं तो यहाँ पे हम स्केच में कुछ पॉइंट क्रिएट करते हैं। एग्जिट, यहाँ पे स्केच, मेरे पास टू पॉइंट है। गो टू द एक्सिस, टू पॉइंट्स। सी ओके, अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है या वर्टिक्स पॉइंट है कुछ, कैन ऑल्सो मेक। ये क्या बोल रहे, पॉइंट एंड फेस। अगर तुम्हारा फेस में कुछ पॉइंट, 3D पॉइंट है, देन वी कैन मेक। तो ये क्या था तुम्हारा 3D 2D के लिए। सी यहाँ पे दिखा ना, टू पॉइंट्स और वर्टिक्स, और यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है।
सो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन जो है पॉइंट वाला, मैं एक फेस में यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे। ओके, 2 पॉइंट मेरा है यहाँ पे अभी। थोड़ा ये सब एक्सिस को मैं हाइड कर देता हूँ। See, this one point 2, this one point 1. By selecting the option point option, we can select this one and this one. This and this. Just make a cylindrical object. Just extrude. I have a point here. This one. And a point over this. Go to the option axis. This one. And this one. See. By using 2 points, we can सेंटर एक्सिस। make. ओके, ये हमारा फेस का। ओके ओके, द लास्ट ऑप्शन जो है पॉइंट एंड फेस मींस इफ यू हैव ए पॉइंट और तो हैव 3D ए में दिखाऊंगा दिखाऊंगा कैसे होगा दिखाऊंगा, ठीक है ठीक है। पॉइंट एंड नहीं फेस सर, मींस इफ यू, हाँ मेरा यस यस। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है 3D में पॉइंट लेने के लिए स्केच में ट्रांसफॉर्म नहीं करना नहीं पड़ेगा, नहीं राइट? नहीं नहीं, 3D के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट एंड फेस मींस इफ यू हैव ए प्लानर फेस विथ ए पॉइंट देन वी कैन मेक ए एक्सिस। सी, in cylindrical, if you have a cylindrical object or circular object, just only select the object. It will automatically, the axis will automatically come in the center. Then click here, OK. See, then आता है पॉइंट में हमारा आता है आर्क सेंटर, सेंटर ऑन फेस, इंटरसेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन पॉइंट। सी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सी, मेरा ये एक सर्कुलर फेस है, आर्क सेंटर और सर्कुलर फेस सेम है, ठीक है। If you have a circular object and select the face to define the point, it will be automatically come in the middle of this face. See, if you have a a rectangular object, see, तो rectangular object में मुझे center में एक point चाहिए। Go to the option point, select center on face, select, okay, see, ये face के center में एक point create हुआ। Sorry, intersection, see, intersection point में एक point create होता है। यहाँ पे मेरा this line and this line will be intersected in this point, so we can create a point over the intersection area. To point projection,
Projection means if you have a point in your face, you want to project it to the next place or next plane. You just go to the projection. Then nothing on point. On point means ओके ऑन स्केच पॉइंट। अगर हमारे पास एक स्केच है पॉइंट का, go to the option point, select, okay, so these are the option. briefly बोल देता हूँ। arc center means if you have a cylindrical type of or circular type of object, we can define the point in the middle of circle or middle of arc. अगर तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर फेस है और मिडिल में तो पॉइंट चाहिए तो you just select the center of face. Intersection means if you have intersected object and you need a point in between that, then you just select. Projection means if you have a plane and you need to project your point to that plane, you just select the projections. On point means if you have a 2D sketch point and you want to convert it into 3D, you have to select this one and select the point. नेम के वाइज ही डिफाइन होता है और कुछ नहीं। आर्क सेंटर में सर्कुलर, सेंटर ऑफ फेस में रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, और एनी मीन्स चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या ना हो, कोई भी फेस हो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इन सेंटर। और अगर इरेगुलर प्रोफाइल होगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कम्स इन सेंटर, बट प्लानर फेस होना चाहिए। क्लियर? ओके सर। सर वो जो ऑप्शन है ना स्वेप्ट बॉस, एक बार सर यस, प्लीज। वो दिखाऊंगा वो आगे दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी मॉडल्स है, जैसे कि अभी नेक्स्ट हम ये सब करने वाले हैं, तो इसमें स्विफ्ट का यूजेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा, तुम उसका यूज नहीं करोगे तो वो भूल भूल ही जाओगे। तो व्हेन वी आर डूइंग द मॉडल्स, ठीक है, जब हम मॉडल करेंगे, ये सब मॉडल्स 3D मॉडल्स में आएंगे, ठीक है, उस टाइम हम लोग यूज करेंगे स्वेप्ट हो, लॉफ्ट हो गया, ये सब उस टाइम मैं दिखाऊंगा तो तुम लोग इजीली कैच कर पाओगे, और उसका माइंड भी मीन्स उसको तुम्हारा माइंड में वो रहेगा कि हाँ ये ऑप्शन इसी के लिए, पर्टिकुलर इसी के लिए यूज होता है। दिखाने में भी कुछ नहीं है, लेकिन यूज तुम लोग ही भूल जाओगे वो सब, ठीक है। अभी बेसिक को पहले क्लियर कर दो, जैसे कि प्लेन वगैरह हो गया, मिरर, और तुम्हारा रिफरेंस में आज मैं दिखाया प्लेन, एक्सिस पॉइंट, जो भी हो गया, और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सब को अभी फिलेट चैम्फर, इसको क्लियर करो, वो सब देखेंगे, ठीक है। उसका यूजेस अभी नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा, फिर से मुझे सर दिखाना पड़ेगा। हाँ, सर एक्सट्रूड कट एंड यस, पॉकेट, उसमें सर बेसिक डिफरेंस क्या है एक्सट्रूड कट एंड पॉकेट? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो ओनली सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। तुम उसको कैटिया में पॉकेट बोलते हो, सोल्डक्स में एक्सट्रूड कट होता है, और कुछ नहीं, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और एक्सट्रूडेड बॉस एंड पैड दे आर सेम? सेम 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 एग्जैक्ट आज इट इज। ओनली वो डिपेंड करता है तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अलग अलग होता है, ऑप्शंस का नाम अलग रहता है, ठीक है, पूरा सेम ही है। ओके, अभी तुम्हें बनाना है यहाँ पे ये मॉडल्स को, जितने मॉडल्स यहाँ पे देख रहे हो, कंप्लीट करना है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सॉलिड मॉडलिंग का एक्सरसाइज। मीन्स ये इफ यू हैव टू डी व्यूज, अगर तुम्हारे पास 2D व्यू है, हाउ कैन वी मॉडिफाई दैट 2D व्यू इनटू ए 3D पार्ट, जैसे कि जिसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास एक ड्राफ्टिंग का मॉडल है और उस मॉडल को तुम्हें देख के एक 3D मॉडल बनाना है, ठीक है,
तो उसको कैसे हम कंसिडर करेंगे? एक प्रोजेक्शन व्यू है, हाउ टू मॉडिफाई इट इन 3D। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो दो मतलब व्यू सर है। एक प्लेन मिसिंग है, एक हाँ फ्रंट हाँ प्लेन हाँ एंड साइड प्लेन है और टॉप हाँ। प्लेन मिसिंग है। यस यस, कोई भी एक प्लेन मिसिंग होगा तो तुम्हें दो व्यू, दो प्लेन को लेके ही तुम्हें और एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना है और एक प्लेन को डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे हमारा दो प्रोजेक्शन है, एक साइड व्यू और एक फ्रंट व्यू है। इसको तुम्हें एज्यूम करके एक थर्ड प्रोजेक्शन क्या होगा, थर्ड प्लान क्या होगा, उसको बनाना है। ठीक है, बट इससे पहले हमें ये सब को कंप्लीट करना है। ओके, मैं एक मॉडल करके यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू, ये साइड का पहले बनाएंगे। दिस वन 40, 50, 58, 30, 10। ओके, so go to front plane sketch. कितना एक्सट्रूड हुआ है ये? 80। मिडिल में करेंगे। 64, ये रेडियस 25। ओके, ट्वेंटी, 64। फिफ्टीन। और क्या है यहाँ पे? और एक स्केच यहाँ पे है। CO5 का। ओके, डिस्कस नेक्स्ट स्केच। इसको
कितने का है? 11। और कुछ है यहाँ पे? ओके, सो बाकी का जो भी मॉडल्स है जस्ट हैव टू मेक। ओके, हो सकता है तो। ओके सर। सर ये जो काट होती है ना, ये डेप्थ डेप्थ देना से हाँ डेप्थ देने से हाँ, वो जो सर, वो जो लास्ट में जो काट होती है ना, हाँ, हाँ हाँ, वो सर डेप्थ देता से ही बनाते हैं ना। मैं एनी अदर प्रोसेस लाइक any other कैसे? process means you have to make a sketch and हाँ, एंड uh, डेप्थ define the cut depth। एक्सट्रूड और कट। हाँ, और कुछ प्रोसेस नहीं है, वही करना है। ओके स्केच सर। करना है कि स्केच करके तुम्हें कट डेप्थ को डिफाइन करना है, और कुछ नहीं है। ओके, ओके, तुम पूछ रहे थे ना वो यूनिट कैसे चेंजेस करेंगे। हेलो, हाँ देखो, यस। तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी तुम एक न्यू पेज में जा रहे हो तो योर यूनिट्स कम्स इन आईपीएस। ओके, बट यू वांट इट इन एमएमजीएस। so how to change it? so go to here first। तुम्हें जाना है यहाँ पे, सी सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम डाटा, देन गो टू सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क तुम्हारा जो भी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट में डबल क्लिक, यहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा पार्ट डॉट पी आर टी डी ओ टी। ओके, तो ये इसको तुम्हें लेना है सॉलिडवर्क्स फाइल में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मेरा सॉलिडवर्क्स यहाँ पे ऑन है, इसको क्लोज कर देता हूँ अभी फर्स्ट। तो ये पेज में जब तुम होते हो, गो टू दैट, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ओके, सॉरी, देखो, तो तुम्हारा वो फॉर्मेट क्या होगा, ओपन होगा। तो तुम्हें कौन सा फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए, आईपीएस चाहिए, सीजीएस चाहिए, एमकेएस, एमएमजीएस, जो भी चाहिए, ये जस्ट सिलेक्ट इट। तो मुझे एमएमजीएस चाहिए, सिलेक्ट करना है और उसको सेव करना है, नॉट सेव एज, सेव। ठीक है, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो तुम जो भी नेक्स्ट जाओगे न्यू में, तो तुम्हारा ड्रैग वो करने का फाइल, बाद सेव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये चेंजेस करने के बाद सेव करना पड़ेगा। देखो हम्म। अगेन, इसको यहाँ पे पुट करना है, ये ओपन हो गया। इसको मुझे चेंज करना है आईपीएस में, आईपीएस में सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे जाके फाइल सेव, तो वो आईपीएस मोड में चेंज हो गया। आईपीएमएस सेट होता है, आईपीएस। हाँ, तो अभी तुम जो जितना भी तुम्हारा न्यू पेजेस ओपन होगा वो आईपीएस मेथड में ही ओपन होगा। सी, और डिफॉल्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट हो गया। इसलिए डिफॉल्ट को तुम्हें चेंजेस करना है तो ये लोकेशन में जाके इसको ड्रैग करके on the file, first you have to close this window, then go to here, drag and up here and change the particular unit here and make it save, then close, then again open it। okay, clear? हाँ। सर वो सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद वो जो 30 डेज का जो मैसेज होता है ना, उसको सर अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं होता है ना? मैंने एट नहीं, फर्स्ट सर उसको अवॉइड, इंटरनेट देना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में नहीं ओपन होगा वो सॉलिडवर्क्स एक्चुअली सर। क्यों ऑफलाइन मोड क्यों नहीं ओपन होगा? मीन्स तुम अगर ट्रायल जानता नहीं वर्जन है। यूज कर रहे हो, नहीं नहीं, ट्रायल वर्जन अगर हाँ यूज सर कर वो रहे हो 30 डेज का,
तो वो दिखाएगा हाँ ना। वो सर पहले में हाँ उसे यूज इंटरनेट रिकमेंडेड वो एक डायलॉग बॉक्स आता है ना, हाँ तो बोधी का स्क्रीन में सर आप तो देखा ही होगा। हाँ सर वो हाँ तो सर उसका सर अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं होता। एक्चुअली सर फर्स्ट में इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, देना पड़ेगा। और मैंने मतलब वो ऑफलाइन मोड में नहीं ओपन होता, वो इंटरनेट कनेक्शन दे के वो इंटरनेट रिकमेंडेड डायलॉग बॉक्स के स्किप करके देन ओपन होगा। वो जो 30 डेज का तो। हाँ 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 हाँ, अगर लाइसेंस यूज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए हाँ। इंटरनेट वगैरह। अगर तुम ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हो तो वो चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, जो जो ऑप्शन आज में दिखा है उसको प्रैक्टिस करना।